میرا خدا گواہ ہے، یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے اور کل کو وہ بچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، تھی اور اب بھی ہے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بیٹھے ہماری رہبری کریں، آئیں، بس ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن، میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ویئرز، اپوزیشن کی قومی کانفرنس آج اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس قومی کانفرنس میں محمود خان اچکزئی نے ایک اہم اعلان کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، آئیے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ملک سیاسی تقسیم، عدالتی مقدمات اور 9 مئی کے واقعات کے بعد شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا بانی چیئرمین بھی ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں؟ اور جس انداز سے بانی چیئرمین سوشل میڈیا پر بیانات اور ٹویٹس دے رہے ہیں، کیا ان کے بعد مفاہمت یا معافی کا کوئی رستہ باقی بچتا بھی ہے؟ اور خاص طور پر جب 9 مئی کی کیسز کی وجہ سے تحریک انصاف پہلے ہی قانونی اور سیاسی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا 9 مئی جیسے واقعات کے بعد واقعی ایک دوسرے کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا ریاست، سیاست اور احتجاج کے درمیان کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آخر کیا ہوگا؟ کیا ڈائیلاگ ممکن ہے یا خلیج مزید گہری ہوتی چلی جا رہی ہے؟ یہی ہیں وہ اہم سوالات جن کا آج اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے جن کے جوابات ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں اظہر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ۔ اسٹارٹ کرتی ہوں بیگ صاحب سے۔ بیگ صاحب، آج محمود خان اچکزئی صاحب نے جو کہا وہ آپ کو ہم نے سنوا بھی دیا، آپ نے یقیناً وہ دیکھا بھی ہوگا، لیکن جس قسم کے بانی چیئرمین کی طرف سے جو ٹویٹس کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، جس نے جہاں کل بھی ایک بڑی جو ہے وہ ایک لیتھل قسم کی جو ہے وہ ٹویٹ آئی ہے، کیا اس کے بعد ڈائیلاگ ممکن بھی ہے؟ مطلب جس قسم کی جو ہے ٹویٹس آ رہی ہیں، اگر آپ نے واقعی ان کو مینڈیٹ دے دیا ہے تو پھر تو آپ کو یو شوڈ ٹیمپریچر خود آپ کو بھی نیچے لے جانے میں آپ نے بھی کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ اپنے لائرز کے طرف سے آپ نے جو یہ بیان جاری کروایا، اپنے لائرز کو بتا کے جو بیان جاری کروایا ہے، اس کے بعد کیسی مفاہمت، کیسا جو ہے وہ ڈائیلاگ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بیسیکلی محمود خان اچکزئی جو گفتگو انہوں نے کی 2 دن اور آج خاص کر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، خان نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ڈائیلاگ کے موڈ میں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ریاست کو ہائی جیک کر کے ریاستی اداروں کو ڈرا کر ان کو میں ٹیبل پہ لاؤں گا، تو وہ میرے خیال میں ٹائم گزر گیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائیلاگ کامیاب ہو سکے گا، کیونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے ادوار میں، اس بانی نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو، اپنے اوپوننٹ کو معاف نہیں کیا۔ ان کے اوپر ڈرگز کے کیسز بنائے گئے، جیسے رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، اسی طرح جب وہ اپوننٹس کو تقریباً سب کو جیل میں ڈالا اس نے، منہ پہ آپ کو یاد ہوگا ہاتھ بھی پھیر کے کہا کہ میں ان کو جیلوں میں بھی نہیں سکون سے رہنے دوں گا۔ پھر ان کی خواتین مریم نواز اور فریال بی بی کو جیلوں میں ڈالا۔ اس کے باوجود پارلیمان اپنے ہی دور میں نہیں چلنے دی۔ آپ یقین کیجئے، آپ کو اگر منظر یاد ہو، 4.25 سال، تو اس شخص کا جو ہے وہ کیریکٹر اس قسم کا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ڈائیلاگ آپ کریں گے کس سے؟ اور آپ کی گارنٹی کون دے گا کہ آپ وہ پریویس اپنی ہسٹری ریپیٹ نہیں کریں گے جو آپ نے ڈکٹیٹرشپ اور جس طریقے کے آپ نے لاب اور قانون کی دھجیاں اڑائیں۔ آج آپ کو قانون بھی یاد آ رہا ہے، آئین بھی یاد آ رہا ہے، آج آپ کو فوج کی مداخلت پولیٹکس میں بھی یاد آ رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل فیض ہی پوری حکومت چلا رہے تھے، ان کے کہنے پہ سارے لوگوں کو، پولیٹکس کو، پولیٹیشنوں کو جس طریقے سے انہوں نے زچ کیا، بلیک میل کیا۔ اگر آپ کو میں بتاؤں، ان کی اپنی پارٹی کے 2 لوگوں کو جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا تو وہ کنٹینر میں بند کروایا جنرل فیض سے کہہ کے
राजा रियाज जिंदा हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। फैसलाबाद में जो उस वक्त MNA थे और उनके साथ एक राणा साहब थे, वो जो कंटेनर गुलभूषण साहब के मूव करने के लिए उसमें रखवाया। अब आज सारे कानून इनको याद आ रहे हैं, आज अपनी वायलेशंस के जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही, जो आपने जेलों में किया लोगों के साथ वो आप भूल गए हैं। वो इतनी जल्दी कौम कैसे भूल सकती है? तो मैं नहीं समझता कि ये मैंडेट इवन महमूद खान अचकजई साहब के पास भी है कि वो डायलॉग ऑन बिहाफ ऑफ बानी शुरू करें, और शायद वो डायलॉग कोई कामयाब हो, क्योंकि नो बडी इन दिस कंट्री इस बंदे की गारंटी दे सके फ्यूचर की कि ये इंसान बन के पॉलिटिक्स करेंगे, ये रियासत और रियासती इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने जो स्पीच की और दावत दी है, कोई भूल जाएं, इतनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। कता कलामी की माफ़ी, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अचकजई साहब की भी एक हिस्ट्री रही है। ही इज़ नॉट एग्जैक्टली मुफाहमत के लिए सबसे वो एक कोई आइडियल किरदार तो मैं तो कम से कम नहीं समझती, अब मेरी नाकिस राय यही है। फिर छोड़ दें उसको, मेरी राय क्या है, आज जिस किस्म के इख्तिताम पजीर होने पे उन्होंने जो अलकाबात जो इस्तेमाल किए हैं और जो अफवाज के हवाले से जो अलकाबात इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि डायलॉग उनके साथ जो है वो शुरू किया जाएगा। देखिए, महमूद खान अचकजई साहब और इनकी फैमिली की हिस्ट्री रही, वो हमेशा से ही रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक माइंड सेट है। वो किसी भी स्टेज पे बैठे, किसी भी जगह हो, वो उसका इजहार जरूर करते हैं। तो ऐसे सूरत में एक ऐसा शख्स जो रियासत, आप देखिए इनको एक बार मौका मिला, ये सारे लोग ना बातें बड़ी करते हैं, मैं तो हैरान हूँ जब प्रैक्टिकली बारी आती है। इनको हुकूमत मिल गई, मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब इनके चीफ मिनिस्टर बन गए, वो हाफ एंड हाफ टेन्योर था, उसमें इन्होंने 11 से 12 बंदे अपने गवर्नर, भाई गवर्नर, मिनिस्टर्स, भतीजे, भांजे, 11 लोग पावर में आ गए। आप रियासत के खिलाफ भी काम करें, रियासत और रियासती इदारों पर तनकीद भी करें जो कि बिला जवाज है, और उसके बाद आप मजे भी लूटें। तो मैं नहीं समझता ये जस्ट आई वाश उस, अच्छा पूरी कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर हुई है वो आप जरा सुनिए। वो कहते हैं लड़ जाएं, मर जाएं, डट जाएं। भाई आप डट ले, अगर आप रियासत के खिलाफ डट सकते हैं तो करके दिखाएं। जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है उनकी ये लैंग्वेज नहीं होती जो लैंग्वेज उस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने बोली है। फिर शायद इसीलिए मैंडेट वरकाले इसीलिए दिया गया है, लगता यही है कि बानी चेयरमैन ने इसीलिए मैंडेट दिया है बिकॉज मुताबिकत तो रखती है ना सोच एक दूसरे के साथ, लेकिन जो वो चाह रहे हैं कि रास्ता उनके लिए निकले, वो रास्ते मजीद जो हैं वो बंद होते जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो जो बानी महमूद खान अचकजई के लिए अल्फाज इस्तेमाल, जो वो इसकी नकलें उतारता था, मौलाना फजलुर रहमान की नकलें उतारता था, शहबाज शरीफ की नकलें उतारता था, जरदारी साहब को किस तरीके से ये बुलाता था, तो मकसद ये है कि आप किस मुंह से मफामत की बात करते हैं। 4.25 साल आपने उनकी फैमिली की खवातीन को भी नहीं छोड़ा अंदर करने पे, तो क्या लोग भूल जाएंगे? अब आपको मफाहमत याद आ रही है? किस बात की मफाहमत? आप एक क्रिमिनल चोरी के केसों में अंदर हैं। अब आप कहें कि जी मैं किसी लॉ को मानता ही नहीं, और इसके जो फॉलोअर्स हैं, आप देखिए टैरन वाइट को शुरू हुआ, ये नहीं माना, आज इसके बेटे कह रहे हैं वो हमारी बहन है। लॉस एंजलिस कोर्ट में इसने एफिडेविट जो लाहौर से जारी करके खुद पेश नहीं हुआ। इसी तरह इसका फॉरेन फंडेड केस देख लीजिए, वो भी नहीं मान रहा था, ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा था अपनी फंडिंग का, जो कि आपने देखा ही है कि फॉरेन फंडेड केस में कहां से इसको पैसे आए, और आज भी कहां से आ रहे हैं। आज भी इसका ट्विटर हैंडल कौन हैंडल कर रहा है? वो फॉरेन इसके हैंडलर हैं जो चाहते नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो, वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी आए। तो ये तो हर केस, ये तोशाखाना पहला केस देख लीजिए, 2 देख लीजिए, अच्छा जी वो जो नकाब वाला केस था वो देख लीजिए, मतलब हर केस में ये कहता है मैं तो बेगुनाह, काम लेने नहीं चाहता। राइट, आपका पॉइंट आगे मैं जरा ब्रिगेडियर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरफ बेग साहब इशारा कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो माय फॉलो अप क्वेश्चन, बिकॉज इन एसेंस दैट इज द $1 million क्वेश्चन। दो चीज़ें कि क्या महमूद खान अचकजई के पास हकीकी मैंडेट है, और दूसरी ये कि अगर उनके पास मैंडेट है
تو بانی چیئرمین کی گارنٹی کون دے گا؟ آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے کسی طرح کا جو ہے وہ وفد جو ہے اس کی میٹنگ ہوئی تھی حکومتی وفد کے ساتھ، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو گئی تھی. باہر جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی سوری وہ تو نہیں مان رہے. سو who's going to take his guarantee, and does he Achak Zai صاحب actually enjoy that mandate? ڈاکٹر ماریہ، میں محسن بیگ صاحب سے نا ساری باتوں سے متفق ہوں. بات یہ ہے محمود خان اچک زئی کی سوچ پاکستان کی فوج کے بارے میں، آج ان کو کہیں نا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن پہ ہم نے فینسنگ کی ہے یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں بیان آئے گا. انہوں نے کہا تھا نا توڑ دو اس کو اٹھا کے. آپ کو یاد نہیں ہے انہی کے لوگ، انہی کی پارٹی کے لوگ کھلم کھلا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈز نادرا کے جو لوگ تھے ان پہ پریشر ڈال کے افغان نیشنلز کے لیے لے رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو ابھی بالکل، تو ابھی آپ دیکھیں نا یہ پورے افغان جتنے ہمارے ریفیوجیز تھے ان کے کارڈ بنوا کے ووٹ لکھتے رہے ہیں. افغانیوں کو بھیجنے کی بات کریں یہ مخالفت کرتے ہیں. ریاست کی پالیسی ہوتی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. دین ان کو اگر لا کے آپ اپنے لیڈر اپوزیشن بنائیں گے تو دیٹ مینس یہ اسی پالیسی کو لے جانا چاہتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی ہے اور محمود خان اچک زئی کی ہے. ایک تو یہ کلیئر بات ہوگی. سیکنڈ یہ کہ اگر آنیسٹلی اگر یہ سیریس ہے نا تو میں وٹ آئی فیل، اب پہلی بات ہوتی ہے کانفیڈنٹ بلڈنگ میئرز. ٹویٹر کو خاموش کروائیں. 6 مہینے کے لیے یہ سوشل میڈیا بند کروائیں نا اپنا، بالکل بلیک آؤٹ. نمبر 2، 6 مہینے کے لیے نو ٹویٹ فرام بانی، بالکل ختم. نو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو یہ جالا کی ہے. فیملی آئے بے شک محمود اچک زئی آئے، ملیں، مل کے چلے جائیں. نو اشتعال انگیز بات، نو اسٹریٹ پاور، نو مارچ ٹو اسلام آباد. آپ اپنی کے پی میں پرفارمنس کریں اینڈ دین اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کر کے اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور اسمبلی کو فعال کریں. جو آپ کی پازیٹیو پالیٹکس ہو، آپ نے کوئی پالیٹکس اسمبلی میں کی کہ جی مہنگائی کی کیا، ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے، اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کی کیا ہے، مہنگائی کی کیا ہے، ڈیزل، پیٹرول، ایکسپورٹ، وٹ ایور یو وانٹ، کوئی بات نہیں سوائے فوج. آپ فوج کو گالیاں بھی دیں، فوج کے سپاہ سالار کو دنیا میں جو تعریف کرتی ہے دنیا، آپ ان کے بارے میں ایسے ٹویٹ کریں پھر کہتے ہیں میں نے بات بھی ان سے کرنی. تو کون سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ کر رہے ہیں؟ آپ پھر بات کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے بات فوج سے کرنی ہے. دین پلیز گو ٹو دا فورم آف پولیٹیکل پارٹی ہے گورنمنٹ کی، گو اینڈ ٹرائی ٹو بینگ یور ہیڈ اگینسٹ دیم اینڈ ٹاک ٹو دیم. یہ ہے آپ کے پاس ریسیپی اگر آپ پھر نکلنا چاہتے ہیں. آنیسٹلی دس از مائی پرسنل اوپینین، ناٹ کہ مجھے کسی نے کہا، بالکل اٹس مائی پرسنل کہ اگر ہے تو یہ ایک ان کے پاس شاید کوئی طریقہ ہو جس سے ڈائلاگ پھر سٹارٹ ہو، ان کا بیہیویئر دیکھ کے، کنڈکٹ دیکھ کے، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے جی دیکھیں جی، پھر آٹومیٹکلی دیکھیں جب آپ کی پھر آئس میلٹنگ شروع ہوتی ہے پھر کہتے ہیں جی آپ بالکل، آپ ہر وقت برا بھلا بھی کہیں، آپ کہیں جی میں نے اسٹریٹ پہ آنا ہے، مجھے نکالیں گے میں اسٹریٹ پہ آؤں گا. بشرا بی بی کو چھوڑ دیا 26 نومبر چھوڑا تھا نا، انہوں نے کیا حال کیا ہے اسلام آباد کا، آپ دیکھ لیں. بریگیڈیئر صاحب یہ تو ایک ان کا موڈس آپرینڈا نظر آتا ہے کہ آپ تھوڑی سی لیوریج دیں تو بجائے اس کے کہ اپنے لیے کنسیشن پیدا کریں. پتہ نہیں وہ کلہاڑا مارنے پہ گامزن کیوں ہے. بشرا بی بی کا دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو یہ فواد چودھری والا جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں طے تھیں، ان کی ٹویٹ آ گئی. پھر بہن سے ملاقات کروائی یہ کہہ کے بیرسٹر گوہر نے شاید کوئی سی بی ایمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، وہاں سے جو ایک بہت ہی زہریلا قسم کا جو ہے بیان آ گیا. سو پتہ نہیں کیوں یہ آئی ڈونٹ نو وائی یہ اس پہ عمل پیرا ہیں اس پالیسی پہ. ابھی ان کے پاس ایک آپشن اور دیکھیں نا، ابھی ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب اگر یہ ابھی نکلتے ہیں آتے ہیں تو پھر وائس چیئرمین مطلب ہے ان کی ایبسنس میں ہی شوڈ بی ایکٹنگ، ہی شوڈ بی چیئرمین. ان کو پالیٹکس رن کرنے دیں، سیاست چلانے دیں. ہی از اے ماڈریٹ لیڈر. سر میں آپ کی قطع کلامی کی معافی. بڑی انٹرسٹنگ چیز، پچھلے پرسوں جو ہے وہ مروت صاحب پروگرام میں تھے اور ان سے آف کورس ان کا لیگل پرسپیکٹو لے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ بات یاد رکھیے گا شاہ محمود قریشی صاحب کو بانی چیئرمین جو ہے وہ بڑی تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی کوئی اچھی رائے نہیں ہے. پلس چلیں یہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملاقاتیں ہوئی تھیں شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ فواد چودھری اور ان لوگوں کی، تو اس کے بعد ان کو اپنے سلمان اکرم راجہ کے تحت جو ہے ایک بیان جو ہے وہ جاری کروانا پڑا تھا کہ میں بانی کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئی تھی.
सो वही बात आपकी जो आई थिंक एंड एनीवन विद हाफ अ ब्रेन सेल विल अग्री विद यू कि जी सोशल मीडिया को चुप कराएं, देखें वहाँ से शायद कंसेशंस निकलता है. जावेद साहब हैज आल्सो जॉइंड अस. साहब, बात हो रही है कि कितना मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास और कितनी गारंटी वो दे सकते हैं, वो तो खैर हमें नज़र आ ही रहा है. बट ये जो बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी की, एंड मैं भी यही फील करती हूँ कि अगर आपने वाकई ही जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया हुआ है, तो फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का टेस्ट या इस पूरी सिचुएशन का लिटमस टेस्ट ये होगा कि आप ये सोशल मीडिया को जो है वो चुप करवा दें. अगर ये सोशल मीडिया चुप हो जाता है तो समझ आ जाएगी कि वाकई ही महमूद खान अचकज़ई साहब के पास मैंडेट है, अगर वो ये कर सकते हैं. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. देखिए, हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो उस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को, अपने मोहसिनों को उसने मारा है, उसके पीठ में छुरा घोंपा, जहां जहां उसको जरूरत थी उन्होंने इस्तेमाल किया. उसके बाद जो एक हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, बेग साहब हमारे साथ. मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं इसी देख बता रहा रहा हूँ. देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि उस शख्स की किसी भी बात पे आप एतबार नहीं कर सकते. ये वो शख्स है जिसको जहांगीर तरीन ने जमीन से उठाया, आसमान पे ले गया, उसके सारे वसाइल यूज हुए थे. ये वो शख्स है जिसको अलीम खान साहब जो है उन्होंने पूरी एक कैंपेन बना के दी, पार्टी को जमीन से उठा के आसमान पे लेके गए. ये वो शख्स है जो आपके सामने ये बैठे हुए मोहसिन बेग साहब, जिसने पूरी सियासत सिखाई, पूरे राब्ते करवाए, सब कुछ किया, और फिर उसका सिला क्या मिला. और मेरा ख्याल है मोहसिन बेग साहब आज जो यहाँ पे बैठे हो, मैं तो इनको हमेशा बड़ा भाई भी समझता हूँ और मैं अपना एक आइडियल भी समझता हूँ कि ये वो शख्स है, ये वो बहादुर शख्स है कि जिसने उस वक्त उस शख्स को ललकारा था जिस वक्त उसकी आमरीत अरूज पर थी. इस मोहसिन बेग ने उस वक्त उस शख्स के आगे खड़ा हुआ था जिस वक्त ये शख्स अपनी वो कहते हैं ना, उरूज पे थे, नशे, ताकत के नशे में भरपूर था. और ये आज तक मुझे वो सीन नहीं भूलता कि जब इन्होंने अपने घर के बाहर खड़े होके वो पिस्टल लेके और इन्होंने उसका मुकाबला किया था, और बाद में भी ये डटे रहे थे. तो आप उस शख्स के बारे में बात कर रही हैं कि वो महमूद खान अचकज़ई को उसने मैंडेट दे दिया है. देखिए, महमूद खान अचकज़ई भी चंद दिनों की गेम है, वो भी बुरी तरह आप एक बयान आगे आ जाएगा, उससे भी लातलगी होगा. इसको आप समझना पड़ेगा, ये इंटरनेशनल गेम है. ये इंटरनेशनल गेम इस वक्त ये है कि लंदन में जो बैठी हुई है उनकी साबका अहलिया जमाइमा खान साहिबा, वो पूरी गेम सजा के बैठी हैं. अगर आपने CBMs करने होते हैं, आपने मुज़ाकरात करने होते हैं, तो आप अपने बेटों को इंटरनेशनल नशरियाती इदारों के सामने बिठा के प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे होते, झूठ नहीं बोल रहे होते, आप एक पूरी माहौल ही बना रहे होते. यहाँ पर लंदन हो या अमेरिका बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इस सोशल मीडिया पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं. यहाँ से पूरी कैंपेन बना के आपने वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के एक सो कॉल्ड नुमाइंदे का आपने वो लेटर देखा, क्या वो वैसे ही आ गया? वो यहाँ पर बैठी जो लॉबीज हैं, जो इंडियन लॉबीज हैं, एक बात याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान के दो लोगों को, दो समझ लें कि दो हिस्सों को बड़ा खटकता है. एक भारत को, क्योंकि भारत को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो है वो शिकस्त दी, पाक फौज ने शिकस्त दी. और दूसरा ये तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया या इमरान खान है, वो उनको हाफिज जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं वो खटकते हैं. तो इसलिए ये एक आलमी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका जो इस वक्त हेडक्वार्टर है USA अमेरिका में और बरतानिया में है. तो इसलिए किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने. ये लोग डर रहे हैं. डर किससे रहे हैं कि अब फैज हमीद का एक फैसला आ गया है. फैज हमीद का जो अगला केस चलना है उसमें इमरान खान है. इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं. आप महमूद खान अचकज़ई साहब आखिरी आधे घंटे में अगर दो लफ्ज ये कहते हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, 2 दिन उधर क्या हुआ? आपने पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाक फौज के खिलाफ. आप कहते हैं कि यहाँ पर सेमी मार्शल है. आप उन लोगों को मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो पाक फौज के खिलाफ बोलते हैं. तो ये किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते. तो ये बेल मंडे चढ़ती आपको नजर नहीं आ रही? अच्छा, आपका पॉइंट आ गया. वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. विल बी राइट बैक.
इस्लामाबाद को एक जदीद और स्मार्ट शहर बनाने के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में कामयाब तकमील के बाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहा है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का नीलाम आम। नीलाम आम 22, 23 और 24 दिसंबर 2025 को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राहे खुशहाली हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेग साहब की जानिब चलती हूँ। बेग साहब, अभी साहब भी बात कर रहे थे, हम सब भी ये जानते हैं कि आपने बड़ी क्लोजली जो है वो खान साहब के साथ आपने जो है उनको मशवरे भी दिए हैं, उनके साथ काम भी किया है, उनको बड़ी नज़दीक से बारीकी से आपने देखा भी है जिस तरह वो ऑपरेट करते हैं। ये समझने से हम सब कासिर हैं कि एक तरफ जो है वो सोचा जा रहा है कि हमारे लिए कोई राह निकलेगी या राह निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मोडस ऑपरेंडाई हम सबके सामने है और एक ऐसे शख्स के साथ आप जंग के लिए जो है वो खड़े हुए हैं जिसका ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्टैचर जो है वो इतना बढ़ चुका है। इसमें आप क्या समझते हैं कि ये मशवरे जो है ये उनको कोई बानी चेयरमैन को दे रहा है कि इस तरह की ट्वीट्स करो, या ये इस मामले में वो खुद कफील है? देखिए, ये खुद तो ट्विटर हैंडल नहीं कर रहे। इनका बाहर से जो भी इनके अपने हैंडलर्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी ही रहे, कभी स्टेबलाइज ना हो सके पॉलिटिकली, तो वो इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं महमूद खान से पूछता कि आप डायलॉग किससे और किस बात पे करना चाहते हैं, आपके TOR या मुतालबात डायलॉग के क्या हैं, किस बात पे आपको क्रॉस द टेबल बिठाया जाए। क्योंकि अभी अपने लोगों को तो सिर्फ एक ही बात उनको पता है कि इसको रिहा कर दिया जाए। देखिए, रिहा वो कोई पॉलिटिकल केसेस में नहीं है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और इतने सारे केसेस से वो सारी जिंदगी बचता आया। उसने हर चीज को मुंह के ऊपर डिनाई किया, जिसको वो यू टर्न भी कहता था। तो ऐसी सूरत में डायलॉग कैसे हो, जबकि आपको अगर कोई रिलीफ मिलना है तो नेचुरली कोर्ट से मिलना है। इन्होंने इतने लोगों को, ओपोनेंट्स को जेलों में डाला, तो नेचुरली उनको कोर्ट से ही रिलीफ मिला। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, इस मुल्क में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि केसेस किस किस नौयत के बने, किस किस सियासतदान के खिलाफ बने, जिला वतन भी हुए, उसके बाद फिर वो लोग आके प्रेसिडेंट भी बने, प्राइम मिनिस्टर भी बने इस मुल्क के। आपको लगता है कि इन द लॉन्ग रन अगर अपना ये तर्ज सियासत बदल लेते हैं तो तब भी ये केसेस ऑन मेरिट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये केसेस जो हैं वो स्टैंड करेंगे? जो ऑलमोस्ट 31 साल की जेल की सज़ा है वो स्टैंड करेगी दोनों केसेस में? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा मुल्क एक ऐसा है, इसकी ऐसी एक तारीख है कि इसमें कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितने आप प्रीवियस हवाले दे रही हैं, उन्होंने कभी 9 मई नहीं किया, उन्होंने कभी फौज के साथ इस तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं किया, उन्होंने इंटरनेशनली खड़े होकर रियासत पाकिस्तान को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया। IMF को लेटर लिखो, उसको लेटर लिखो, वहां पहुंच के हर जगह रियासत की नफी करते रहे, तो वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक चांस अपने लिए रखा। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अंदर टेयरशिप है 1, 2, 3। तो अगर वो उनका सरबराह जेल में गया तो जो सेकंड उसने कोशिश की। अभी जो आपको नजर आ रहे हैं PTI के जो टेलीविजन पे,
ये बेचारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनका पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं है। ये इन्होंने मौका देखा। असल पीटीआई वाला आपको कोई नजर आता है? जो मिनिस्टर रहे, सरकार में इतनी पावर लूटी, मजे किए, वो कहाँ है? तो ये जो लोग आज आपको नजर आ रहे हैं, इनके पास सिर्फ एक ही मैंडेट है, वो बानी का बाहर आके मैसेज देते हैं। अपने दाई वो ना कोई बात कर सकते हैं, ना कोई किसी के सामने बैठ के कोई डायलॉग कर सकते हैं, वो सिर्फ मैसेंजर्स हैं उसके। ये उनकी वैल्यू है। और खान की नजर में भी उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो एज ए मैसेंजर और वक्ती तौर पर उसको लोग चाहिए, उन लोगों को इस्तेमाल करने का आदी है। उसने पूरी जिंदगी लोगों को इस्तेमाल किया, यहाँ तक पहुंचा, कभी किसी के पैसे, ये तो बेचारा अपने पल्ले से तो खाना भी नहीं खाता। तो ऐसे बंदे को आप समझ लीजिए कि कोई उसका ट्रस्ट कर लेगा। हाँ, जिस मकसद के लिए वो ये काम कर रहा है कि डिस्टेबलाइजेशन रखो, वो हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वो डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में है, और वो उसके जो हैंडलर्स हैं इंटरनेशनली, वो भी यही काम चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली स्टेबल ना हो। तो उस पर वो कारबंद है। अच्छा बेग साहब, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हूँ। जो इस वक्त चलें, एक तरफ तो हमें नज़र आ रहा है कि जी जिस किस्म की स्ट्रैटेजी वो अपनाए हुए हैं, उससे हुकूमत के साथ डायलॉग तो नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बेग साहब जिस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, मुल्क को दरकार है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिकॉज ठीक है, इस वक्त हमारा अगर डिप्लोमेटिकली वी हैव अ लॉट ऑफ सक्सेसेस। सीडीएफ का अगर आप देखें, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, उनके भी बहुत सक्सेसेस है। मार्का हक के बाद एक स्टैचर बिल्कुल बदल गया इस मुल्क का। बट अनफॉर्चुनेटली वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी हैवंट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट। और वो उसका लिटमस टेस्ट क्या होगा, उसका बेंचमार्क क्या होगा जब एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर होना शुरू होगी। वो नहीं हो रही बिकॉज इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे इन्वेस्टमेंट आनी क्या है, लोग यहाँ से जो है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। तो फिर क्या किया जाए? देखें, इसके लिए आप और मैं हमेशा बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आप उसमें फाइंड अ वे आउट। लेकिन ये जो बानी पीटीआई और पीटीआई की जो गलती है सबसे बड़ी, आप मुझे ये बताइए कि जो कुछ वो फौज के खिलाफ कर रहे हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिशियरी है जिसके मजे लगे हुए हैं, दे आर हैविंग ए जॉय राइड, और वो टोटल एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। द मोर डिस्टेंस इज बिटवीन पीटीआई एंड द एस्टैब्लिशमेंट, द मोर एंजॉयमेंट इज फॉर द government party or PML and People Party. He doesn't understand this. I mean, I'm surprised कि कौन सी पॉलिटिक्स है जो इनको समझ नहीं आती है। भाई 9 भी 4 साल भी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पहले पॉलिटिकल पार्टी रन करते रहे हैं। अंडरस्टैंड, जितना वाइड गैप होगा उतना वो तो मजे कर, इसलिए वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप पे नहीं आ रहे हैं। उनको क्या जरूरत आने की? उनको फौज को भी हमने खिलाफ किया है, फौज की उनको फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट को, और होनी भी चाहिए। और साथ वो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है बड़े मदद से। यहाँ पे हमने देखा है माजी में जब भी इस तरह का कभी जो है स्टेलमेट आया है, रिप्रोचमा के लिए या इस्टेब्लिशमेंट का इदारा जो है वो इस्तेमाल होता है, या जुडिशरी जो है वो अपना किरदार अदा करती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दोनों साइडों से कुछ नज़र नहीं आ रहा। और लाइक यू सेड, इन योर ओपिनियन, आप समझते हैं गवर्नमेंट के लिए दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। सो देन क्या हम इसी में फंसे रहेंगे? देखें, इसलिए मैं ये कहता हूँ अभी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट इनिशिएट अ डायलॉग। अगर पीटीआई 2-3 महीने के लिए भी सोशल मीडिया को शट कर दे और इनके स्टेटमेंट पॉजिटिव आने शुरू, बहुत बड़ा अगर है और तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, आपने जो कुछ किया है गवर्नमेंट कैसे इनिशिएट करे? आप खुद किसी सब पे तैयार है ही नहीं। आप भी अगर खुद बानी देखें ना, अगर 9 मई भी हुआ था तो क्या आज तक इतने अरसे में बानी पीटीआई ने एक दफा माजरत की, कौम से माजरत की? वो तो कह रहे हैं उनसे माफी मांगो। जो आप मुझे बताएं, अगर जी उसे 9 मई को 10 मई को आते आगे कहते जी मेरी पार्टी ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मैं अपने कारकुनों के बिहाफ पे, मैं पूरी कौम से, खास तौर पे शोहदा की फैमिली से माफी मांगता हूँ, मिलिट्री से मैं माजरत करता हूँ। मैं ऑनेस्टली शर्मिंदा हूँ। दिस शुड नॉट हैपन एंड आई पर्सनली, आधी चीजें ठीक हो जाती, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। ही सेड ये तो कुछ नहीं, दोबारा करेंगे फिर ऐसे ही होगा, तो बात खत्म होगी। तो दैट मीन कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल माइंड तो होना चाहिए ना
पॉलिटिकल वर्कर है फिर पॉलिटिकल माइंड इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करें, वो आप नहीं करते हैं। यू कांट बी स्टिफ नेक कि आप बेंड होंगे जो नहीं हो सकते। प्रॉब्लम ये पॉलिटिक्स तो है ही है, सियासत में आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपने अभी भी वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं जरा साहब की तरफ चलूँ। साहब बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो खैर वाबस्ता इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अक्विटल है उसके साथ। क्या आप समझते हैं अगेन, क्योंकि फिर हम उसी पे चले जाते हैं कि जो इनका सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो ऐसे हर किसी की ट्रोलिंग करता है, जो भी कुछ जो है वो मफाहमत की बात करने की कोशिश करता है, जो बज़ाहिरन रास्ता निकाल रहा होता है उसके खिलाफ ऐसे जो है ये ट्विटर ब्रिगेड जो है वो एक्टिव होता है कि वो बेचारा भी, इवन शाह महमूद कुरैशी, मैंने एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन उनको भी एक बयान जारी करना पड़ा था। मैं खान के साथ खड़ा हूँ जब इनसे फवाद चौधरी और उनसे मुलाकात हुई थी। आपको लगता है कि ज़्यादा ही उन पर बैंक किया जा रहा है, जो ये सोचा जा रहा है कि जी इमरान खान को माइनस करके पीटीआई से कुछ जो है वो कोई रास्ते जो हैं वो तय हो जाएंगे या मफाहमत हो सकती है या रिलेटिव पीस जो है वो मुल्क में आ सकता है, क्या वो पॉसिबल होगा? देखिए जी, इमरान खान साहब की जो साइकी है ना, वो वन मैन आर्मी अपने आप को समझते हैं। वो जैसे अभी बेग साहब ने कहा कि दूसरी पार्टीज में ये 3 टियर लीडरशिप मौजूद है, उनके पहला अगर कोई अवेलेबल नहीं है, सेकंड टियर आएगी, थर्ड टियर आएगी। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी के दौरान किसी भी लीडर की किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब यही अगर रिहा हो जाते हैं तो सबसे पहले इन पे गद्दारी का एक फतवा होगा और उनको कहा जाएगा कि ये देखें ये डील करके बाहर आ गए हैं। इस वक्त तो मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान साहब की जो जितनी भी अपोजिशन है या वो जो भी वो ट्वीट करते हैं, जो भी उनका मैसेज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कल की भी आप देख लें तो वो फील्ड मार्शल के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो फौज बात कर रहे हैं, वो रियासती इदारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो ये उनका अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा इंटरनेशनल एजेंडा है, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो इंडिया है, इंडिया का एजेंडा है। और वेस्ट ब्लॉक्स में जो लोग बैठे हुए जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते के दौरान उनके दोनों साहबजादों ने क्या किया, उनके दोनों साहबजादे जो हैं वो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे गए और उन एंकर्स के पास गए हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ समझे जाते हैं, जिन्होंने जंग के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ जो वो बयानिया तरतीब दिया और वो सारी वो काम किए जो पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। वो आने वाले दिनों में जो उनके खिलाफ केसेस आ रहे हैं, असल चीज उस पे है। तो इस सारे मामले में इमरान खान साहब किसी को आगे नहीं आने देंगे, कोई उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। बेग साहब बहुत बेहतर उनको जानते होंगे, उनकी जो सोच उनकी बैठी हुई है वो उसी पे चलेंगे और वो उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाक फौज को मुखालफत की है। एक बात और बताऊं कि जो आप ये कहते हैं ना कि 9 मई के वाकयात और 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर सकेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पाक फौज और पाक फौज के इदारे इन दोनों इश्यूज पे, खास तौर पर 9 मई के इश्यूज पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करें और कहें कि जी ठीक है आप इनसे बात कर लें और हम उनसे दस्तबरदार हो जाते हैं। 9 मई का वाकया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं था, ये पाक फौज के खिलाफ था, ये 7 फौजियों के खिलाफ था, ये उन शहदा के खिलाफ था, ये उन यादगारों के खिलाफ था, आप जिना हाउस के खिलाफ था। अब हमारी जो सरगोदा में एयरफोर्स बेस पे जो तैयारे जलाए गए वो पाकिस्तान की सालमियत वदानियत के निशानी है। ISI के अगर ऑफिस को फैसलाबाद में टारगेट किया गया तो वो पाक फौज के इदारे को किया गया। वो GHQ पे अगर वो हमलावर हुए तो वो पाक फौज के इदारे को किया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई की कॉस्ट के ऊपर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इमरान खान से हो सकते हैं। और इमरान खान साहब को ये कहना कि वो इसके बदले कोई उनको पॉलिटिकल स्पेस दे दी जाए तो वो भी मुमकिन नहीं। और ना ही शाह महमूद कुरैशी क्या कोई भी आ जाए, सिर्फ हाँ एक खातून अव्वल जो पुरानी थी साबका बुशरा भी, क्या नाम उनका, बुशरा बीबी, वो अगर उनको कुछ कहें तो मेरा ख्याल है वो मान लें। तो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर वो चलते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। कल भी सुना जेल के दौरान वो ज्यादातर उनके साथ ही बैठे रहे, उन्हीं से बातें करते रहे। तो इस वक्त एजेंडा जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ है। वो तो खैर हमने ओएन बेनेट की जो वो आर्टिकल आया था उसमें देख ही लिया कि किस हद तक जो है वो बुशरा साहिबा जो है वो असरअंदाज होती रही हैं फैसलों पे भी। तो फिर ओनली होप बेग साहब यही है कि जी बुशरा साहिबा किसी तरह जो है वो कायल करें
जो ये लोग उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, या वो जो अभी एक खुद साख्ता एक कमेटी है फवाद चौधरी साहब की, महमूद मौलवी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, वो कुछ नहीं उससे निकलेगा? देखिए वो बिल्कुल ये एनालिसिस तो ठीक है कि एक इतना महात्मा लीडर जो है वो एक ऐसी खातून के नरगे में है जो जादू टूने और ये जो पेशन गोइयाँ थी। मैं हैरान हूँ आजकल वो उनके जिन्हें अडयाला जेल की दीवारें नहीं फैलांग सके। तो देखिए ये शख्स का माइंडसेट आप चेक कर लीजिए, इसको अगर आप एनालाइज करें 30 साल में या 40 साल में, कहाँ वो बिकिनी वाली खवातीन, फॉरनर्स, अमीर खवातीन, फेमस, उनके साथ ये एज ए प्ले बॉय था, और आते 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 किस जगह आके वो गिरा, जो कि बुशरा बीबी की सूरत में है। उस औरत ने आते साथ ही जैसी पावर मिली, उसने जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, जो पैसा उन्होंने लूटा, वो फराह गोगी, बुज़दार और जमील गुज्जर और ये सारे लोगों ने, तो इसमें कोई शक नहीं है वो बात उसी की मानता है, क्योंकि इतना ही दिमाग है कि वो एक उस खातून के नरगे में है जो कि जिसने जो करप्शन की और जो कुछ किया वो आपके सामने है। सिंपल बात आप देखिए, अभी ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि 9 मई के ऊपर वो अगर माजरत कर लेता। देखिए 9 मई फैज हमीद ने और इन्होंने प्लान किया, वो इस तरीके से प्लान किया था कि, और ये कामयाब हो गए थे। ये 6 माह से पूरा फौज के खिलाफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में जाके एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लोगों को इंस्टॉलेशंस की लोकेशंस बताई हुई थी कि जैसे ही हो आपने वहां पहुंच जाना है। वो 9 मई थोड़ा सा पहले आ गया। इनकी अभी तैयारी भरपूर नहीं थी। फर्ज कर लीजिए कि बाद में आता तो ये बाद में अरेस्ट होता, ये दिन बाद में आता तो यहाँ 2 लाख बंदा अगर GHQ पे जाता तो आप तस्वर कर सकती हैं कि इस मुल्क का हाल क्या होता। यहाँ एक खाना जंगी की सूरत हाल होती और ये अपने मकासद में कामयाब हो जाते। ऐसी सूरत में ऐसे माइंडसेट के बंदे को आप कभी भी जो है वो स्पेस नहीं देते कि वो दोबारा आके इस रियासत को या रियासती अदारों को इस तरीके से तबाह बर्बाद कर दे। तो लिहाजा सबको सोचना चाहिए कि इसके जो इंटरनेशनल है, मैं देखें 5-6 साल से कह रहा हूं कि ये इंटरनेशनली सारा कुछ प्लान किया जा रहा है, और रोज जो भी प्लान है वो रियासत पाकिस्तान जो हमने न्यूक्लियर पावर हमने हासिल की, उसका 2-4 मुल्कों को, आपने नेतन्याहू का इंटरव्यू सुन लिया, हमसे पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने दिया। तो मकसद ये है कि ये उस डगर पे चल रहे हैं, इसका यहाँ कुछ नहीं है। बच्चे इसके कभी नहीं आएंगे। कथा कलाम की माफ़ी, आप हमेशा ये बात करते हैं और आप ये बात करते हैं कि जब तक इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा यहाँ पे हमारी जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। जितनी मर्जी हम डिप्लोमेटिकली जो है वो चीज़ें जो है हम बेहतर कर लें, जब तक मुल्क के अंदरूनी हालात बेहतर नहीं होंगे। तो अब अगर ये साजिश भी है, इफ़ आई बिलीव दैट, अगर कोई साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, जो भी है, जिस तरह भी है, तो फिर तो वो अपनी साजिश में जो है वो कामयाब होते जा रहे हैं। वो तो देर गेनिंग वट एवर दे वांटेड टू गेन। अब हम यहाँ पे इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर PTI नहीं करना चाहती, गिवन स्टेक होल्डर्स क्या कर सकते हैं कि चीज़ें हम इसको, इस साजिश को कम से कम डिफीट कर सकें? देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन किसी भी मुल्क के अंदर हो तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिजनेसमैनों को अछूत और फ्रॉड समझती है, इसीलिए ये सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है और पैसा फरावानी में बाहर जा रहा है। आपको थोड़ा सा देखिए, इकॉनमी पे बात हो, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो हमारे अवाम की मुश्किलात है, मैं रोज इस पे ही लिखता हूँ कि खुदारा देर ना हो जाए। आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, कारोबार बंद हो रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करें। फॉरगेट अबाउट PTI, इनको लगा रहने दें। देखें ये जो सोशल मीडिया, ये इमरान या PTI के हाथ में नहीं है, ये बाहर से पैसे आ रहे हैं, वहां से काम चलता है कि फसाद डालना है। आप कुछ भी कहें, आप मौसम का हाल बताएं, ये फिर भी आपको गाली देंगे, ये फिर भी आपके खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि आपकी सोच इनकी सोच से मुख्तलिफ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सारा फोकस इकोनॉमी, बिजनेस और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रियासत को चाहिए। IMF थोड़ा सा रिलीफ, और यहाँ जो वजीर खजाना साहब हैं या जो
ब्यूरोक्रेट हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो तो बिलीव कीजिए ऐसे डिसीजन है कि मैं सोचता हूँ कि कैसे ये डिसीजन आपने किया जिससे बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को इतना नुकसान है। आपने 51% टैक्स पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। अभी भी जाके आप दुकानों पे छापे मार रहे हैं, हरास कर रहे हैं, इंडस्ट्री में 15-15 रेंजर्स लेके आप चले जाते हैं, वहां उनके खाते उठा लेते हैं। वही खुदा का खौफ करें। अगर कराची का देखिए अभी क्या हो रहा है, आबाद की जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, और वो ये कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट आबाद नहीं है, बाकी और जो बिजनेसेस हैं उनको भी भत्ते की पर्चियां, कोई नाइजीरिया से, कोई ईरान से, कहीं कहाँ से आ रही हैं। वो देखें बिजनेस हब में हमारे क्या हो रहा है। एक चीज तो समझ लें, जब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी, बच्चे घरों में बैठे होंगे, 20-25 हजार रुपए की नौकरी अवेलेबल नहीं है, तो क्राइम आपका बढ़ेगा। जब क्राइम बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी पुलिसिंग बढ़ेगी, अदालतों में बोझ पड़ेगा, जेलों में बोझ पड़ेगा, कि माशरा आपका तबाह हो जाएगा। ये बाहर की दुनिया, महजब दुनिया, ये मेरे भाई वहां लंदन पे बैठे हुए हैं, वहां सरकार स्टाइपन देती है वीकली, मंथली, कि तुम रोटी खाओ, क्राइम ना करना। यहाँ रियासत जो कमा भी रहा है उससे भी छीन रही है। इतने टैक्स कौन दे सकता है? इसलिए बिजनेसमैन यहाँ से इंडस्ट्री बंद करके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। काम अभी भी हो सकता है। हमारा मुल्क बड़ा रेजिलियंट कौम है। ये मुल्क 2 साल में बिलीव करें बेहतरीन हो सकता है। इन बिजनेसमैनों को रिलीफ दे, थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। ये टैक्स वाले जो देखें, दहशतगर्दों से मसला नहीं है इस वक्त, मैं आपको लिख के देता हूँ, मसला सिर्फ एहतियात से है। ठीक, मैं ज़रा अज़र साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ बिफोर क्लोजिंग द प्रोग्राम। अज़र साहब, आपने भी बात की कि ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है जिसका हिस्सा जो है वो पीटीआई इस वक्त एज अ टूल इस्तेमाल हो रही है। बट अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, जो आउट ऑफ द बॉक्स बेग साहब सोल्यूशन जिसकी बात कर रहे हैं इस वक्त, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कोई प्रेजेंट करनी पड़ेगी, आपके नज़दीक वो क्या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सिर्फ एक है, जो बेग साहब ने बात किया, आप अपने लोगों को रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, नौकरी दें। सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर लें, आपका पीटीआई का जो ये सारा हवा खड़ा हुआ है 70-80% वैसे ही गिर जाएगा। इस वक्त एक और भी बड़ा फैक्ट है कि इंटरनेशनली जो आलमी मुआशी सूरत हाल है वो भी ठीक नहीं है। यहाँ लंदन या बरतानिया में भी अगर देखें तो यहाँ पर भी बहुत बुरे हालात हैं। तारीख की सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर अगर देखें कि सिर्फ लंदन में 1 साल के दौरान 70,000 मोबाइल चोरी नहीं हुआ, छीना गया है। यहाँ पर भी बहुत मामलात खराब हैं। यहाँ पर बिजली और गैस के बिल्स जो हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो एक सबसे सस्ती चीज समझी जाती थी ब्रेड और अंडे, उनकी कीमतें 2-2 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो भी ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर इसका इफेक्ट आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन, आप आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन इमरान खान की मौजूदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि उस शख्स की वो जुबान पर एतबार नहीं है। वो आपसे मुआहदा भी, लिखा हुआ मुआहदा भी कर लेगा, बाहर आएगा तो वो दोबारा यू टर्न ले लेगा। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत काम कर रही है, मुआशी शोबे में अच्छे इशारे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को आप रोटी दीजिए, मकान दीजिए, नौजवान को ये दीजिए। ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल पॉइंट आपका आगे। ब्रिगेडियर साहब क्विकली अगर आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें। हमारी सिंपल सी बात है कि आप अवाम को खुशहाल कर दें, अवाम को खुशहाल, वो पीटीआई को सब कुछ भूल जाएंगे। उनको जॉब दें, एजुकेशन दें, कीमत सस्ती करें, उनके कारोबार अच्छे करें, बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी, और अपना हाउस, ये करप्शन, एफबीआई का पैसा जो जाया हो रहा है वो वापस करें। ये चीजों में आप आईएमएफ की रिपोर्ट में जो निशानदेही की गई है उस पर कम से कम फोकस कर लें। ठीक, on that note, I'll have to close today's program. Brigadier साहब, मोहसिन बेग साहब और अज़र जावेद साहब, thank you very much for making time program. मुल्क खुशहाल होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। On that note, we'll close today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।